Hi all. I already explained the lesson 7 packing. How you pack your things when you want to go anywhere. I already example to give to you just like when you have to come to the school. Before have to come to the school, you have to keep your all things which are necessary for your school. Suppose books, subject wise books. As per your timetable, you keep your books, notebooks, lunch box, water bottle, then pouch, then suppose drawing pad is there, art, then all are there, graph is there, maths graph paper, and all things. Okay, so like that packing when you have to go out by train, by bus, by plane, by car, by whatever. But you should be, before that you should be packed. There I already explained, the three friends are there, they want to go outside, how they pack their things. Actually that was in not in serially, not in smoothly, how they were uh, faced to difficulties. So I already explained. Today I want to say from the packing, the lesson number 7 BI. The phrase, the phrase and idioms are very important for your English 9th standard. Okay. Now and then. Now and then. So you have to write the occasionally. Occasionally. Okay. OCCASIONALLY. Occasionally. Potter about, POTTER, Potter ABOUT, about, Potter about. So do some unimportant things. Do some unimportant things. Fell into, FELL, fell, INTO, into, fell into. That means accepted, ACCEPTED, accepted. Pride on self on. Pride on self on. Feel proud of. Feel proud of. Mess about. MESS, mess about, ABOUT. Mess about मतलब keep busy with purpose. Keep busy, BUSY, busy without purpose. PURPOSE. Keep busy without purpose. Make someone wild. Make someone wild. तो क्या होगा? Make someone crazy. Make someone crazy. Okay. Hunt for, HUNT. Hunt for. Hunt for का क्या आएगा? Search for. Hunt for मतलब search for. All are phrases and idioms. Spin round, SPIN, spin, ROUND, spin round. तो spin round मतलब rotate swiftly, ROTATE, rotate swiftly, SWIFTLY, rotate swiftly. Trod on, TROD, trod on, on, trod on मतलब stepped on, STEPPED, stepped on, STEPPED, stepped on, stepped on. Be sworn at, BEBSWORN, sworn at, at, be sworn at. तो क्या आएगा? Get scold, GET, get scold, ACOLDED, ACOLDED. Okay, get scold. Tumble into, TUMBLE, tumble, INTU, tumble into, TUMBLE, tumble, INTO, tumble into मतलब get into, tumble into मतलब get into. Okay, get something off, get something off, GET, get, SOME, some, THING, thing, something, OFF, off, get something off मतलब remove something, REMOVE, remove something, SOMETHING, remove something. Okay, फिर चलो आप लोग have a row over,
HAVE have, ROW row, A have a row over, HAVE have a row, ROW row over, OVER have a row over. तो क्या आएगा? dispute over something, DISPUTE dispute over, OVER over something, SOMETHING dispute over something. Chaos reigned, CHAOS chaos reigned, REIGNED chaos reigned मतलब disorder prevailed, disorder, DISORDER disorder prevailed, PREVAILED disorder prevailed. ओके, फिर चलिए क्यार ए हैंग, CARE क्यार, HANG हैंग, क्यार ए हैंग, CARE क्यार, HANG हैंग, क्यार ए हैंग. तो क्यार ए हैंग क्या होगा? शो नो इंटरेस्ट, शो नो इंटरेस्ट, SHOW शो, NO नो, इंटरेस्ट INTEREST. हो गया. पोटर अबाउट, तो आपको मैंने ऑलरेडी लिखा बोल चुकी हूँ, डू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, फिर एवरी मॉरल थिंग, EVERY एवरी, MORTAL मॉरल थिंग, THING. मॉर्टल थिंग नहीं बोलना, T इज द साइलेंट इज देयर इन द वर्ड. जैसे ऑनेस्ट में HONEST, तो आप लोग क्या बोलते हो? हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हो. ऑनरेबल गेस्ट, HONO, ठीक है, HONOURBLE गेस्ट, GUEST. तो ऑनरेबल गेस्ट को हम लोग हॉनरेबल गेस्ट नहीं बोलती हूँ, हावर नहीं बोलती हूँ, HOUR हावर नहीं बोलते, आवर बोलती हूँ. ऑनेस्ट, HONEST हॉनेस्ट को हम लोग ऑनेस्ट बोलती हूँ, हॉनेस्ट नहीं बोलती हूँ. तो जो H साइलेंट है, तो मॉरल के MORTAL T साइलेंट, तो मॉर्टल नहीं बोलना है, मॉरल बोलना है. तो एवरी मॉरल थिंग, तो क्या होगा? एवरी ऑर्डिनरी थिंग, EVERY ऑफ एवरी ऑर्डिनरी, ORDINARY ऑर्डिनरी थिंग, THING थिंग. फिर गेट इन द वे, गेट इन द वे, GET गेट, INTH WAY गेट इन द वे. गेट इन द वे मतलब इंटरफेयर with something, INTERAPRE interfere with, WITH with something, SOMETHING. ठीक है, इंटरफेयर विथ समथिंग. हो गया. चलिए, स्टम्बल ओवर, STUMBLE स्टम्बल ओवर, OVER स्टम्बल ओवर. स्टम्बल ओवर क्या बोल सकते हो? टिप ओवर समवन, टिप ओवर समवन. ठीक है. फिर चलिए, हंट फॉर, हंट फॉर मतलब सर्च, मैंने पहले ही आप लोग को बोल चुकी थी. ठीक है. अभी देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है स्लैबिंग, कैवस, डमेट, स्क्रैप, स्टम्बल ओवर, accomplish, uncanny, arrow. An opposite side is there, a quarrel or an argument. Remove something from inside another thing using a sharp tool. Strange, mysterious, difficult to explain. Finish, successfully achieve. ठीक है. Search for something by moving thing around carelessly. Complete, confusion and disorder. Fall or step awkwardly while walking. And last is there, walking hard. तो मैच करने जब बोले तो आपको नंबर 1 स्लैबिंग के साथ क्या मैच करना है? वॉकिंग हार्ड. स्लैबिंग के साथ क्या करना है? वॉकिंग हार्ड. नंबर 2 कैवस, CHAOS. कैवस के साथ आता है कंप्लीट कन्फ्यूज़न, जो एब में दिया रहेगा. कंप्लीट कन्फ्यूज़न एंड डिसऑर्डर. कैवस मतलब कोई भी चीज़ का नॉट इन ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड कैवस. ओके, CHAOS. तो उसका ये आएगा कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर.
ओके, फिर चलिए रामेज, RUMMAGE, RUMMAGE, रामेज का मतलब होगा सर्च फॉर समथिंग, सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड केयरलेसली, अराउंड केयरलेसली, सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड केयरलेसली। स्क्रैप, SCRAPE, स्क्रैप का मतलब होता है आपने मैचिंग मैच करोगे जब तब, रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग, यूज ए शार्प टूल, हो गया। स्टम्बल ओवर, स्टम्बल ओवर का आएगा आपका फॉल, FALL, फॉल, और स्टेप एक्वार्डली, AWARDLY, एक्वार्डली, वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग। फिर एक्कम्प्लिश, ACCOMPLISH, एक्कम्प्लाइज, एक्कम्प्लाइज का क्या आएगा, एक्कम्प्लाइज का आएगा आपका फिनिश सक्सेसफुली व अचीव, हम लोग बोलते हो ना अचीव किया, दैट इज कॉल्ड फिनिश सक्सेसफुली, FINISH, फिनिश सक्सेसफुली, SUCCESSFULLY, सक्सेसफुली, अचीव, ACHIEVE, अचीव, हो गया। अनकैनी, UNCANNY, अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। एरो, एरो मतलब एक एन आर्गूमेंट, एरो मतलब आप एक साथ एरो नहीं लिखना, इसको एरो लिख लो, एरो, तो क्या आएगा उसमें, ए क्वेरल ऑन आर्गूमेंट, ठीक है। अच्छा, आपके फिर मैंने कुछ आप लोग को ये कराई थी, शायद आप लोग देखा नहीं होगा, देखा था आपने, क्वेश्चन आंसर भी दी थी मैंने। अच्छा, पंक्चुएशन किसको बोलता है, जहाँ पर कॉमा, फुल स्टॉप, हसन, आपकी कोई सेंटेंस आप जब पढ़ते हो उसमें देखोगे कहीं पर कॉमा दिया हुआ है, फुल स्टॉप का मतलब दिस सेंटेंस इज कंप्लीट, एक्सक्लेमेटरी साइन, दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज देयर, क्वेश्चन मार्क, क्यूरियोसिटी और आस्किंग इज देयर, और सेमीकोलन मतलब इसके बाद कुछ है, कॉलन इसके बाद इसकी रिलेटेड नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो ये मैंने आप लोग को इस बार आप लोग को पेपर में भी मिलेगा, तो यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस, कभी भी कोई वर्ड सेंटेंस पढ़ो तो रीड केयरफुली एंड फॉलो द पंक्चुएशन, ठीक है। तो हम लोग कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाए तो दूसरा सेंटेंस को कंटिन्यू हो जाता है, तो ये हम नॉट पॉसिबल, तो एक ही साथ राम इज ए बॉय, राम गुड बॉय, तो ये सुनने में भी अच्छे नहीं लगता है, एंड इट्स सेंटेंस ऑल्सो नॉट कंप्लीट इन प्रॉपर वे, दैट्स वाई पंक्चुएशन वी आर यूजिंग। सपोज आई एम गिविंग द नेवरथलेस he gave the requested blessing and as destiny would have it the blessing seemed to work, इसमें देखो कोई फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, नेवरथलेस he gave the requested blessing and as destiny would have it the blessing seemed to work, तो आपको जब स्मॉल लेटर होगा, ऑलवेज रिमेंबर when you have to start the sentence, any word, तो you have to write in capital letter, फर्स्ट लेटर, वर्ड भी लिखो, सेंटेंस भी लिखो, आप किससे चालू करोगे, कैपिटल लेटर से। सपोज आपके इसमें क्या देना है, नेवरथलेस, नेवरथलेस में क्या लिखोगे, इन कैपिटल लेटर मस्ट बी देयर, फिर कॉमा, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग टू पॉइंट, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, कॉमा, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, फुल स्टॉप। तो जब आप एक सेंटेंस पढ़ोगे, जब आप रुकते हो तो पता चलेगा समथिंग पंक्चुएशन मिसिंग इज देयर। हम पढ़ते नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, एक कंटिन्यू एक ही सांस में पढ़ के गया तो दिस सेंटेंस रीडिंग इज द इनकम्प्लीट
and it is wrong way. जब when we use in this sentence with the punctuation, when we have to write or read with the punctuation, then sentence also complete and it is in proper way. तो मैंने पहले बोल चुकी हूँ, नेभार्थलेस का in should be in capital letter first. Then he gave the requested blessing dot, and as destiny would have it that means comma, उसके बाद the blessing seemed to work and end with full stop. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मार्क होगा, अदरवाइज क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज फुल स्टॉप. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मी कंटेंटमेंट. द गर्ल, इसको तो समझ में आया. तो आपको इसमें क्या करना है, द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मी कंटेनमेंट. तो एक ही साथ लिखना नहीं है, आपको इसको कैसे बनाना है. द गर्ल वॉज गिवन द नेम, फिर संतोष, संतोष को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है. ए संतोष का नेम इज द, संतोष इज द प्रॉपर नाउन, तो संतोष का एस मस्ट बी एस इज कैपिटल दिया, और संतोष का इन्वर्टेड कॉमा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखोगे, संतोष के बाद कॉमा दोगे. विच मी कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट तो फुल स्टॉप. तो संतोष को क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखोगे, संतोष के बाद कॉमा लगाओगे, विच मी कंटेंटमेंट मतलब फुल स्टॉप इज देयर. नेक्स्ट, एंड इफ यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सेड हरीश. हम एक ही साथ पढ़ के जा रहे हैं, एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सेड हरीश. तो आपको ये क्या करना है, आपको लिखना है एंड, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है. यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन क्वेश्चन मार्क एंड क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. सेड हरीश, हरीश का एच कैपिटल लेटर होगा और फुल स्टॉप आएगा. सेड हरीश, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो इसको आपको इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है. इन्वर्टेड कॉमा आपको इन के बाद लगाना है, देन क्वेश्चन मार्क, सेड हरीश, हरीश कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप हो गया. फिर within 12 months संतोष found herself a members of Indo-Nepali women's expedition that invited her to join them. तो एक ही साथ पढ़ने से तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया. Within 12 months संतोष found herself a members of the Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. कोई सेंटेंस में कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों रुकूँ, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो विद इन 12 मंथ्स, तो W विद इन 12 मंथ्स से जो W है, यू शुड बी राइट इन कैपिटल लेटर, यू शुड बी राइट इन कैपिटल लेटर. ओके, 12 मंथ्स, मंथ्स के बाद कॉमा, मंथ्स के बाद क्या डालोगे, कॉमा. ठीक है, तो मंथ्स के बाद कॉमा हो गया. संतोष का एस कैपिटल लेटर होगा, संतोष एक नाम है तो एस कैपिटल लेटर. फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ इंडो-नेपलीज वुमेन्स, इंडो-नेपलीज, इंडो का आई कैपिटल लेटर होगा, INDO छोटा सा डैश होगा, नेपलीज एन का कैपिटल होगा, NEPALESE नेपालीज. तो इंडो नेपालीज, इंडो का आई कैपिटल लेटर होगा, छोटा सा गैप होगा, इंडो नेपालीज एक साथ कंबाइंड वर्ड्स, तो आपको नेपालीज के पहले एक छोटा सा डैश होगा, और वोमेंस के WOMEN' होगा, वोमेंस. एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन में ई स्मॉल लेटर है तो आपको यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर. दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, फुल स्टॉप. ओके, फिर 5 नंबर में जाइए. I found George and Harish 18 times over, but I could not find my own. I found George and Harish 18 times over, but I could not find my own. ये आपको स्मॉल लेटर में सब लिखा है, तो आपको कैपिटल लेटर सबसे पहले कौन सा करना है, आई. आई का भी स्मॉल लेटर होता नहीं है, आई कैपिटल लेटर होगा. फाउंड जैसा एज इट इज. जज, जज का जी स्मॉल लेटर है तो जी कैपिटल लेटर होगा, एक नाम है. फिर जज एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, GEORGE एपोस्ट्रोफी एस, जज. एंड हरीश, हरीश का भी HARRIS के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा. हरीश इज अ नेम तो H कैपिटल लेटर. ओके, 18 टाइम्स ओवर,
18 टाइम्स ओवर, तो इसके नीचे क्या होगा, ओवर के बाद कॉमा। बट आई कैपिटल लेटर, कुड नॉट फाइंड माई ओन, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर चलिए, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ सेड जॉर्ज, सो मिस्टीरियस सेड हरीश। मैंने एक साथ रीडिंग कर लिया। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ सेड जॉर्ज, सेड सो मिस्टीरियस सेड हरीश। तो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसने बोला था, जॉर्ज ने बोला था, और हरीश। तो सबसे पहले क्या करोगे, मोस्ट का एम कैपिटल लेटर, और मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ, आई का कैपिटल लेटर, हियर्ड ऑफ है आपका स्मॉल लेटर जैसा होता है, ऑफ के बाद कॉमा आएगा। तो आपको क्या करना है, मोस्ट के पहले इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करनी है, स्टार्ट विथ इन्वर्टेड कॉमा, और ऑफ के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा ऑल्सो देयर। सेड जॉर्ज, जॉर्ज इज द नेम, तो कैपिटल लेटर जी, सेड जॉर्ज, फुल स्टॉप। जॉर्ज ने बोला था, क्या बोला था, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ, तो किसका बात था, जॉर्ज का बात था, तो सेड जॉर्ज, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। देन सो मिस्टीरियस सेड हरीश, हरीश ने बोला सो मिस्टीरियस, तो सो मिस्टीरियस को, सो मिस्टीरियस तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो सो का एस का कैपिटल लेटर होगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे, सो मिस्टीरियस, सो मिस्टीरियस को, सो मिस्टीरियस एक कॉमा को इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आप इसको क्या करोगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा था वो क्लोज होगा। सेड हरीश, हरीश का एच कैपिटल लेटर, हरीश का एच कैपिटल लेटर, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका पैकिंग की बुक की जो मैथ्स है, फिर एडियम्स ये सब है, उसका मैंने अभी कराया। ओके, लेकिन अभी आपको इंग्लिश में कुछ सीखना है, हाउ इट इज़ पॉसिबल बाई यू। तो हम लोग को सबसे पहले एक छोटा सा शॉर्ट नोट पढ़ना है। वी शुड लाइक टू कंग्रेचुलेटेड यू ऑन योर परचेज ऑफ दिस हाई क्वालिफाइड। अब एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ बोल रही हूँ, अच्छा से सुनो, देन यू विल बी फाइंड आउट। एक फ्लास्क आपने मार्केट से खरीदा थी कीमती, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। वी शुड लाइक टू कंग्रेचुलेटेड यू ऑन योर परचेज ऑफ दिस हाई क्वालिटी फ्लास्क। It is designed to be extremely robust and sturdy. It features a double-walled vacuum glass flask. आपको मालूम है फ्लास्क के अंदर ग्लास होता है, जो ठंडा वाला होता है वो अलग होता है, गर्म वाला होता है वो अलग होता है। जो गर्म वाला उसके अंदर ऐसी तैयारी है जो गर्म रहे सामान, पानी भा जो भी हो, चाय कॉफ़ी, और ठंडा में ऐसे ही रखना है जी, इतने टाइम तक वो ठंडा रहेगा। आप जब मार्केट में फ्लास्क करने जाते हो, जो जनरली यूज़ करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस टाइप ऑफ फ्लास्क, जो आपने एक्चुअली जो फ्लास्क जो होता है ठंडा गर्म वाला, हॉट एंड कोल्ड, वो उसके बारे में बात हो रहा है। इन फीचर्स ए डबल वॉल वैक्यूम ग्लास फ्लास्क विच गिव्स एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट हॉट व कोल्ड हीट रिटेंशन एंड इंसुलेशन। ओके, सो दैट यू कैन इंजॉय योर एक्विजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको ठंडा व गर्म रखने के लिए तो आप एक फ्लास्क से खरीदोगे। We request you to note the following points for using your lift-head flask। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लिफ्ट हेड, LIEFHEFT। ठीक है, ठंडा और गर्म फ्लास्क मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो आप बोल सकते हो मुझे लिफ्ट हेड फ्लास्क चाहिए। अगर जिसको मालूम है वो आपको दे सकते हैं ठंडा व गर्म फ्लास्क। टू ओपन द फ्लास्क टर्न टॉप एंटी क्लॉकवाइज। जब आप फ्लास्क को खोलोगे उसकी ढक्कन सीधे नहीं खोलोगे, एंटी क्लॉक खोलोगे, तभी वो खुलेगा। जैसे ये मार्कर पेन, मार्कर पेन का क्या होता है मालूम है आपको, जो हम लोग इंक भरते हैं, ये आप इंक भरते हो ना तो सीधे तरफ खुलते तो नहीं खुलेगा, इसको हम जब इस तरफ खोलेंगे ये तब खुलेगा, उल्टा खुलते हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो मार्कर पेन जैसा है, तो फ्लास्क को भी हमको ऑपोजिट एंटी क्लॉक घुमाना, इधर से नहीं घुमाना उधर से घुमाना, तो ये खुल जाएगा।
बिफोर यूजिंग द फ्लास्क रिंस इट आउट वेल एंड क्लीन इट विथ लूकवार्म वाटर। ये फ्लास्क को आप जब भी खरीदोगे तो ये हल्का गर्म पानी से इसको धोना है, इनसाइड एंड आउटसाइड। क्यों? अंदर जो तैयारी करने के बाद कितने हाथ होके आया। अभी तो मालूम है कोरोना वायरस इस दिया, तो हम लोग ऑटोमेटिक कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो धोती हो। तो फ्लास्क आप जब भी खरीदो आप इसको थोड़ा सा धो के लेना और उसको हल्का गर्म पानी से साफ करना। द बेस्ट वार्मथ और कूलिंग इंसुलेशन इज इम्प्रूव्ड। यू रिंस out the flask with hot water for hot drinks and with cold water for cold drinks before filling the flask with the drink। अब जब भी इसको गर्म पानी व ठंडा पानी रखने के लिए सोचोगे जो मैं कल से ले जाऊँगा, तो उसके पहले एक बार हल्का गर्म जो फ्लास्क है उसको हल्का गर्म पानी से एक बार धो लेना, और जो ठंडा है और ठंडा पानी से एक बार अंदर धो लेना। The best insulation is also only available when the flask is full. In that case, hot coffee, for example, remains warm for approx 20 hours। मालूम है ट्रेन में आप जाओगे तो अगर आपने एक ऐसी फ्लास्क में गर्म कॉफ़ी बना के लाओगे तो बोलता है ये फ्लास्क जो रियल फ्लास्क है 20 आवर्स तक वो गर्म रहता है। कैन यू इमेजिन? आई होप यू विल बी फाउंड आउट इन द मार्केट। कभी ना कभी ये खरीदोगे आप, तब उसका एक बार एग्जाम करके देखना। तो वो क्या होता है फ्लास्क में आपकी 20 आवर्स, दुकान वाले तो बोलते हैं लेकिन एक्चुअली क्या होता है, तो कोई फ्लास्क ऐसी होती है। अवॉइड एक्सट्रीमली वाइट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑफ द ग्लास। लेकिन जब एकदम ज़्यादा गर्म है उसको तुरंत नहीं डालना। मालूम है कॉफ़ी बना के तुरंत इसमें नहीं करते, तो यू हैव टू लुक आफ्टर दिस केयरफुली। जब आप गर्म पानी का फ्लास्क में डालते हो तो आप क्या करोगे, उसकी पहले एक बार उसमें हल्का गर्म वाला कोई चीज़ डाल के एक बार उसको जस्ट वार्म अप कर लेना, तो उसका अंदर भी साफ़ हो जाएगा और उसकी जो हॉट वाला पावर है इट विल बी टेक। तो उसके बाद आप गर्म चाय कॉफ़ी जो भी डालोगे 20 आवर्स ना 20 आवर्स तक इट विल बी रिमेन। एक्चुअल फ्लास्क जो है तो एक्सट्रीमली वाइट टेम्परेचर करोगे, एक्सट्रीमली वाइट टेम्परेचर के वाइट टेम्परेचर फंक्शन ऑफ द ग्लास। नेक्स्ट, फॉर पोरिंग टर्न टॉप हाफ ए टर्न एंटी क्लॉकवाइज। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जैसे हम लोग ये मार्कर पेन की ढक्कन खोलती हूँ क्लॉकवाइज खोलूँ तो खुलेगा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ये मार्कर खुलती है। हम लोग जब इंक भरते हैं हम इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। तो आपको फ्लास्क भी जब आप लेके खरीदोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज खोलना है, ठीक है। द फ्लास्क हैज़ ए प्लास्टिक बटन, देयरफॉर इट शुड नेवर बी पुट ऑन ए हॉट प्लेट ऑन द कुकर और सिमिलर। आप इसका प्लास्टिक नीचे वाला प्लास्टिक होती है, तो आप क्या करोगे, कोई हॉट स्टीमर हो व हॉट वेसल्स हो, डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ प्लेट, आप उसको यूज़ नहीं करना। क्लीनिंग द फ्लास्क, अभी उसको साफ़ कैसे करते हैं। आउटसाइड वाइप ओवर विथ क्लीन वाटर और पॉसिबली सम लिक्विड क्लीनर। बाहर वाला जो है पोर्शन आप ऐसे ही यूज़ करोगे जो वो सूटेबल है, लेकिन अंदर का जो है जो हॉट फ्लास्क है जिसमें आप गर्म पानी रखोगे, गर्म चाय कॉफ़ी रखोगे, वो कभी भी ठंडे से साफ़ नहीं करना पड़ता है, उसके वार्म वाटर बोलते हैं, मतलब हल्का गर्म पानी उसमें डाल के उसको साफ़ करते हैं। और ठंडा पानी जो है वो कोल्ड वाटर से आप साफ़ कर सकते हो। तो समझ में आया। इनसाइड अभी कैसे साफ़ करते हैं, आउटसाइड ऐसा हुआ। इनसाइड क्या करते हैं, ओनली रिंस आउट विद क्लीन वाटर। कॉफ़ी और टी रिमेन्स कैन बी रिमूव्ड इजीली विद डिनर द क्लीनर्स, नेवर इमर्स द फ्लास्क कम्प्लीटली इन वाटर। अगर कॉफ़ी थोड़ा सा भी पड़ा रहेगी, फिर सेकेंड टाइम आप उसमें कॉफ़ी डालोगे तो नीचे वाला जो कॉफ़ी वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, इट विल बी डिस्ट्रॉय। तो क्या होगा, पहले वाला जो कॉफ़ी है उसके साथ सेकेंड वाला कॉफ़ी आपका जहर बन जाएगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप जब कॉफ़ी फ्लास्क ख़त्म हो गया, आपको उसमें 1-2 बूंद तो पड़ा ही रहेगा, आप देखोगे कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अंदर होगा, तो आप उसको हल्का गर्म पानी से उसको धो, ठीक है। A more secure sealing between the glass flask and the housing of obtained by tightening the locating screw situated at the bottom। सबसे नीचे एक स्क्रू होता है जो ग्लास और फ्लास्क
का जो हाउसिंग वाला जो अंदर वाला बाहर वाला जो फ्लास्क की अंदर एक मैं पहले ही बोली हूँ एक ग्लास होता है जो ये पानी को गर्म रख रहा है, चाय कॉफ़ी को गर्म रख रहा है। द शुड बी चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप मार्केट में जाओ आपको एकदम ठंडा व एकदम गर्म फ्लास्क चाहिए जो है आपकी टाइम पे पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको क्या बोलोगे आप? वो फ्लास्क को बोलो लिफ्ट हिप्ड। क्या बोलोगे? लिफ्ट हिप फ्लास्क है अंकल बोल के आप खरीद सकते हो। तो दुकान वाले समझ जाएंगे आपको फ्लास्क किसको चाहिए, कैसी चाहिए। ठीक है, लिफ्ट हिप आप जो स्कूल में लेके आते हो उसको फ्लास्क बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट फ्लास्क, इज़ द वाटर बॉटल। तो आप जब टूर पे जाते हो, वो जो 3 दोस्त गया वो ऐसे ही लेके गए थे। ठीक है, फिर चलो लिफ्ट हिप तो क्या होता है? तो 2 ईयर्स गारंटी होता है। एक जो फ्लास्क होता है 2 ईयर्स गारंटी होता है फॉर द फ्लास्क, ये फ्लास्क के लिए। इम्प्रॉपर यूज ऑफ द ग्लास फ्लास्क इज हाउएवर नॉट इंक्लूडेड। रिप्लेसमेंट ग्लास इंस्टॉल्स अवेलेबल फ्रॉम रिटेलर्स। जो दुकान वाले होता है वो आपको चेंज करके नहीं देगा। कौन चेंज करके देता है? रिटेल वाला, जिसके पास से हम लोग पूरा एक साथ बहुत सारे, आप एक रिटेल वाले के पास जाके आप एक नहीं खरीद सकते, आप दुकान वाले लेके आता है, मालूम है ना। हम लोग दुकान से खरीदते हो 1 पीस मांगते हो दे देते हैं, लेकिन रिटेल वाले के पास जाके आप 1 पीस मांगोगे तो नहीं देगा। तो उधर कौन जाता है? दुकान वाले जाता है, कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम दैट रिटेलर। तो रिप्लेसमेंट ग्लास इंसर्ट क्या होता है? आइस क्यूब्स और अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में डैमेज द इनर ग्लास वॉल। हम लोग क्या करते हो, ठंडा है, थोड़ा ठंडा कम हो गया तो हम लोग फ्लास्क के अंदर ना आइस क्यूब डालते हो। इट इज़ इफेक्टेड द ग्लास, ये ग्लास को इफेक्ट करता है। इट इज़ नॉट राइट वे टू कीप द फ्लास्क इन प्रॉपर। ठीक है ना। तो हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है शुड नॉट बी केप्ट ऑन द जग। जग शुड नॉट बी यूज टू कीप बेबी फूड्स और मिल्क पाउडर्स वार्म। हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हम देखते हैं मम्मी लोग बच्चे के लिए गर्म दूध भी रखते हैं उसमें, लेकिन क्या होता है मालूम? इसमें दूध जब होता है तो कॉफ़ी चाय के फ्लास्क में आप दूध रखोगे तो दूध जो होगा वो इन प्योर दूध नहीं मिलेगा जब बच्चे को पिलाओगे। क्यों? जो कॉफ़ी पर चाय उसके एक बूंद भी अगर फ्लास्क में रह जाए तो ये फ्लास्क आपकी ख़राब हो गया। दैट मीन्स आपके दूध में कुछ ना कुछ वायरस आ गया। तो ये दूध इज़ नॉट, हाँ खाली फ्लास्क अगर दूध के लिए यूज़ करते हो इट्स ओके। फ्लास्क अगर यूज फॉर ओनली फॉर मिल्क इट्स ओके। समझ में आया? जो लिप हेड वाला जो फ्लास्क है, आप फ्लास्क पर्पस आपको दुकान वाले पूछेगा तो एज पर योर यूटिलाइज, हाँ यू हैव टू ब्रिंग दैट टाइप ऑफ फ्लास्क फ्रॉम द मार्केट बोलना। ओके, तो डिज़ाइन फॉर टेबल टॉप यूज ओनली। और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए भी अलग दूध का अलग होता है। तो ये जो फ्लास्क यूज़ करते हो, फ्लास्क की हमारे बोलोगे मैडम इसके साथ पैकिंग, ऑब्वियसली हम जब बाहर जाते हो तो फ्लास्क तो ज़रूरी होता है। तो यू शुड कीप दिस टाइप ऑफ फ्लास्क ऑल्सो। आप जब सामान जैसे पैक कर रहे हो, व्हेन यू हैव टू कीप योर थिंग्स इन प्रॉपर वे, तो यू शुड बी टेक वन फ्लास्क इन प्रॉपर फ्लास्क फॉर पर्पस ऑफ यूज़। आपको देखना है अपने रास्ते के लिए चाय कॉफ़ी लेके जा रहे हो तो उसको ये सब से फ्लास्क कर दो। आपको गर्मी के टाइम जाना है तो एकदम ठंडा चिल पानी आप रख सकते हो, लेकिन आइस नहीं डालना। एक बार अगर जैसे होता है ना मिट्टी के घड़ा, मिट्टी के घड़ा में मालूम है पानी ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो थोड़ा आइस डाल के ठंडा करना है सॉरी आइस डाल के ठंडा करना है, इट इज़ नॉट राइट वे। ये आइस डाल के अगर ठंडा करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम वाटर विल बी नॉट कोल्ड, यू विल नॉट फाइंड द कोल्ड वाटर। समझ में आया? तो आपको ठंडा पानी नहीं मिलता है, इसलिए बोलता है मटका जो होता है मिट्टी की जो ये होता है घट होता है उसका आप लोग जो जाते हो ना तो उसमें ठंडा करने के लिए पानी निकालने के बाद आप आइस क्यूब आपके ग्लास में डाल लो। लेकिन अगर आपने मटका में कभी भी आइस क्यूब डाले हो तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी नॉट कूल वाटर गिव यू, वो आपको कभी ठंडा पानी देगा ही नहीं। वो कैसे देगा? वो
गर्म हो जाता है। एक बार तो ठंडा पानी मिल गया बहुत अच्छा से, सेकेंड टाइम इट विल नॉट फाइंड एज पर योर डिमांड। सेकेंड टाइम तो आपको पानी नहीं मिलेगा बेटा। तो शुड बी टेक केयर, फ्लास्क इज द पार्ट ऑफ द पैकिंग, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन द अबाउट द फ्लास्क। ओके, सो बी सेफ and each and everything write down. I hope your English paper also good, and try to write the answer by oneself. Okay, so be careful, try to keep your handwriting when you give your paper. You have to should be write in your proper handwriting and write down your name and roll name and standard and English medium also there mentioned. Okay, so be safe and keep a good day. Bye bye beta, everybody keep safe and all the best all of your exam.